So, hi, good evening, everyone. We are live here today at Gurgaon Community Circle, and this is Smriti here for you. And what a lovely evening we have when we are live with none other than Aman Bathla here. Aman has been a celebrity or a very known person for us for many years. Yeah. And especially with Gurgaon Community Circle, we have seen the journey for probably many years with him. He's held multiple world records, actually 52 world record title he holds, and he is best known as the fastest pianist of the world. So he also holds a PhD in music therapy and specializing in prenatal as well. He's a well-known TEDx and a motivational speaker, and more to it, internationally awarded educator by UNICEF, UNESCO, and ECOSOC. So there we go. We have Aman here. A warm welcome to you, Aman, and wonderful having Thank you you so here. much. Yeah, Thank you please. so much. मैं सिर्फ इतने heavy introduction में ये बोलूँगा, just a small student of music learning every day. इतना heavy introduction ना दो यार, मैं तो वैसे ही लाल हो गया आपके बोलते you know. I was not ready for this. Thank you so much. Thank you so much. So we have known you, and we can, as we see you, you are there with all your trophies and awards at the background, which is, such a beautiful sight. You're sitting in your room and with all your awards and trophies there. So wonderful to see that, and it has been growing over the years. Thank you. So, but yes, once the COVID started, we saw you playing for us on Gurgaon Community Circle The every day in the everyday morning, agenda, right? as we went into the Janta curfew with the lockdowns. Right. First thing in the morning, listening to your wonderful recitals was a very, very pleasant thing. And, they would go on with us with the day with beautiful music resonating through the day. And brought a lot of, energy to life as well while we were all stuck at home. And And that it was was the so motive. amazing that you started that thing and sharing the music in the group, and we thank you for that. It is my pleasure and thanks to you and everybody in the group जिन्होंने आज तो मेरी थैंक यू की लिस्ट इतनी लंबी होने वाली है फॉर श्योर धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट यस इतना प्यार मिला उस ड्यूरेशन में एक आर्टिस्ट को और चाहिए नहीं कुछ अदर देन दिस यही मोटिवेट करता है कि हाँ लोग प्यार दे रहे हैं लोग सुन रहे हैं एंड आई फेल्ट इट इज़ अ ड्यूटी अगर आप म्यूज़िक के थ्रू किसी को शांति दे रहे हो किसी को पीस दे रहे हो व्हाट कुड बी बियॉन्ड द बेस्ट कर्मा टू डू एंड जस्ट लविंग इट सो थैंक यू वंडरफुल while we're talking 2020 में आपने सबको engrossed रखा उस musical journey में 2021 में in the second wave last year, while we were still kind of struggling, you also fell succumb to COVID, and also kind of had a very, very hard struggle. जी And we missed hearing from you and listening to you. So थैंक यू just if you could share how, what were things going around you during that time. I'd love to ओह hear that. We all have been worried. We were all you know kind of trying to gather information on how you were doing, holding up. But yes, we need to hear from you. नहीं बिल्कुल इनफैक्ट दिस इज़ वेयर आई स्टार्ट सेइंग थैंक यू बहुत छोटा रहेगा यार हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड कितना थैंक यू बोलूँ वो कम है इतना प्यार मेरे को मिला थ्रू आउट दिस जर्नी आई मीन आई वॉज जस्ट फाइटिंग इट एंड आई नेवर न्यू कि ये फाइट जो है मेरी बैटल में चेंज हो जाएगी इट वेंट वे टू लॉन्ग बट येस अच्छा दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर इंसिडेंस इसी से रिलेटेड है इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड तो एवरी डे आई वाज पोस्टिंग अ वीडियो आल्सो 5-6 दिन तक ये चीज़ चली एंड मोटिव बिहाइंड दैट वाज के एवरीथिंग इज हेयर इफ वी आर रेडी टू फाइट यू कैन एक्चुअली फाइट द सर्कमस्टांसेस एंड थिंग्स
So that was on, and I was actually being a fighter there throughout the journey. It was there, Yes. but somehow एक मेरी बहुत खूबसूरत रियलाइजेशंस की जर्नी रही है ये। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ट्राई ये करी कि सुनने वाले ने ये तो सुना कि मैं एक फाइटर हूँ एंड आई एम फाइटिंग, वो समहाउ कहीं मैं ना सुनाई दे रहा हो, wherein I was able to fight just because of the reason मेरे पास जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस थे या जो अस्त्र शस्त्र थे मेरे पास लड़ने के लिए, वो और कुछ नहीं थी बल्कि ये ब्लेसिंग्स थी, ये प्यार था जो थ्रू आउट मेरे साथ रहा। इट ऑलवेज केप्ट ऑन पुशिंग मी कि नहीं, अभी नहीं, आई हैव टू फाइट इट। True. And that is what it really took a very different route altogether. 5-6 दिन के बाद आई थिंक I'll just share what all I went through, might be किसी के काम आए वो वाला चीज़ सिचुएशन, भगवान ना करे कि अब दोबारा से वो वेव वाला फैक्टर दोबारा आए। बट आई फेल्ट जिस ड्यूरेशन में मेरी चीज़ टेक ऑफ कर रही थी, एकदम से बढ़ने वाला था, तो उस ड्यूरेशन में मेरे को जो मेडिकेशन चाहिए थी, माइट बी पीपल वर सेइंग कि स्टेरॉइड एकदम से ले लो तो उस टाइम पे काम आ जाता वो, तो आई वॉज नॉट गिवन दोज, इंस्टेड आई वॉज केप्ट ऑन द ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन का भी जो फ्लो रहा दैट वॉज द फुल, ऑलमोस्ट 20 पे आई वॉज गिवन द ऑक्सीजन एवरी डे। दैट अगेन रिमाइंड्स मी, मेरे को फिर से थैंक यू बोलना है उस हर एक सोल को जिसने आउट ऑफ द वे जाके सिलेंडर्स अरेंज कराए उस टाइम पे। इट वाज वेरी टफ, मेरे को बाद में पता चल रहा है अब कि क्या क्या सिनेरियोस थे उस ड्यूरेशन में, मैं तो अनकॉन्शियस आई वाज देयर। सो आई थैंक वंस अगेन एवरीवन, जो जो आप सुन रहे हो और जो जो लोग कनेक्टेड रहे, इतना प्यार इतना कंसर्न मिला यार। आप कहते हो ना जीवन में सब कुछ कमा लिया, अगर ये प्यार कमा लिया तो मैंने वो तो बहुत कमाया, टच वुड। सो ऑक्सीजन की वजह से लंग्स और बिल्कुल हैम्पर हो गए, एंड 5th of May I was admitted in the hospital. Now that was also a very ugly side of that situation, I'll say, कि आप एक हॉस्पिटल में हो और मेरे साथ सिर्फ एक और जेंटलमैन ही वाज देयर जो कि कोविड पॉजिटिव ही थे वो भी, एंड वी वर शाउटिंग लिटरली फॉर द हेल्प कि यार वी नीडेड सम असिस्टेंस, लेकिन बाहर से खड़े होके सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट नोबडी वाज एंटरिंग बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी, इतना डरे हुए थे सब लोग। एंड इस ड्यूरेशन के अंदर भी अगेन फिर मैं एक बच्चे का नाम यहाँ लूँगा, ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मोनू कुमार इज हिज नेम। द डे आई वॉज डायग्नोज्ड विद द कोविड, और जब हालत थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हुई, दिस गाय अपने गांव से वापस यहाँ आ गया सरप्राइज देते हुए, डिस्पाइट मी बीइंग पॉजिटिव। ही वॉज द वन हु डेयर्ड एंटरिंग द रूम और आके मेरे पैर दबा रहा है, पानी दे रहा है, सर्व कर रहा है, जैसी चीज़ें चल रही थी। ही वॉज देयर थ्रू आउट, जितना टाइम मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ 3-4 महीने, ही वॉज देयर। वो बच्चा अपने घर नहीं गया, कहीं नहीं गया। तो इन खूबसूरत सोल्स के लिए जितना थैंक यू बोलो वो कम है। माई वाइफ यार, उसके लिए आई डोंट हैव वर्ड्स व्हाट टू से, ऑलवेज बीन अ बैकबोन, एंड इस जर्नी में तो शी इज़ द वन हु शाउटेड एंड कॉल्ड मी बैक। बहुत इंसिडेंसेस वो भी रहे अलग, एंड माई सिस्टर लाइक ये मेरी छोटी माँ बन के आई है सामने, आई से थ्रू आउट इतने महीने शी वॉज देयर, एंड कहीं नहीं जाना किसी ने, एंड बहुत सेवा करी है यार। मेरा तो कोई क्रेडिट ही नहीं जाता, सारे बोलते हैं हाँ यार बड़ा फाइटर है, बड़ा फाइट कर गया, हॉस्पिटल में भी बड़ा शोर मचा हुआ था। मैं तो सिर्फ अनकॉन्शियस होके सिर्फ एक अपना मेडिटेट करता चल रहा था। जर्नी तो इन लोगों की रही यार, कितना स्ट्रगल, कितनी टेंशन्स थी उस ड्यूरेशन में, एंड डिस्पाइट दे मैनेज्ड एवरीथिंग। सो कुडोज टू यू ऑल, कुडोज टू एवरीवन जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि नहीं अभी और बेटा अभी रुक, अभी मत जा। सो आई एम ऑल हियर। सो जर्नी वाज वेरी ब्यूटीफुल, आई नो बहुत 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 पेनफुल रही, इसको अगेन एक और सीरीज में डालेंगे। बट हाँ,
fight was on throughout. जब आप और आई थिंक हमें से काफी जानते हैं और जिनको नहीं मालूम है, आप हॉस्पिटल में थे पर आप यहाँ गुड़गांव में नहीं थे. यू वर फार फ्रॉम होम. जी. And not many had could accompany you. I think your wife Shilpi went शिल्पी. with you, जी. and your sister was there throughout, like so many months that you were in the hospital and राइट. kind of fighting through it. आपके मदर यहाँ थे, आपके बच्चे यहाँ थे, your girls. So what was going around with them? So how have you been able to kind of grasp what they went through over those many months of separation and anxiety and I'll, I'll what? share I'll share a beautiful gesture Mm, जो मेरे भतीजे ने एक मेरे लिए बनाया. That's a surprise for you also, स्मृति जी. ये हमने नहीं शेयर किया था. I'll share that. Now best part was, when I was in the hospital, तो 70 days I was totally unconscious and every breath was a fight. उसके बाद जैसे जैसे मैं होश में आ रहा था तो एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंट याद है मेरे को उसका. तो ये जितने भी सब लोग थे, आई रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर, वो भी उन्होंने भी बहुत सेवा करी, वाज देयर थ्रू आउट. तो ये लोग ना मेरे को शीशा नहीं दिखा रहे थे. आई कुड फील दाढ़ी इतनी बढ़ गई है एंड बाल हाथ लगाता था एंड बाल हेयर फॉल वाज ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा जा रहे थे. एंड आई कुड सी माई सेल्फ वेर इन कुछ बचा ही नहीं था. इट वॉज ओनली दी आई वॉज जस्ट 30 kgs लेफ्ट, आप इमेजिन करो. एंड इन लोगों ने शीशा मेरे को दिखाया नहीं. जब एक दिन आई इंसिस्टेड, बिकॉज एवरीबडी लव्स, हर एक इंसान अपने आप को प्यार करता है और करना भी चाहिए. और मैं भी बड़ा कॉन्शियस सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान हूँ कि नहीं यार, अच्छा तो रहूँ, देखूँ तो सही क्या है. एंड द बेस्ट पार्ट वाज द मोमेंट दैट मिरर केम टू मी. तो मैंने आई कुड सी शिल्पी इतनी स्ट्रेस थी कि मेरी क्या रिएक्शन आने वाली है एंड एवरीबडी अराउंड. मैंने बोला मैं तो मॉडलिंग करूँगा फॉर श्योर. एंड पीपल अराउंड मी वो भी सोच रहे पागल हो गया है तो ये क्या बोल रहा है उस हालत में. मैं बोला यहाँ पे कोई भी बायो लैब होगी, सेंड मी. जिन बच्चों ने स्केलेटन के ऊपर स्टडी करना है दे कैन डू दैट. एंड देन एवरीथिंग शेप्ड अप, एक चेंज होता गया. सब लोग हंसना शुरू हुए एंड लाइट, it is how we deal with this situation. अब है तो है, I cannot change anything. True. I still remember उस टाइम पे जब मेरा बायपैप हल्का सा, बायपैप से मैं नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क पे आया था, तो देयर वाज अ होल हेयर, मेरे नाक के अंदर ऐसा होल हो गया था. बिकॉज बायपैप 70 डेज पूरा टाइट ही रहा एंड उसके अंदर रहा. एंड उसका पेन अपनी जगह, और आप बेहद ही एक डिफरेंट तरह का मैं इंसान दिखने लग गया था थ्रू आउट. तो अब हो गई है सिचुएशन. आई कुडंट डू एनीथिंग एल्स अदर देन फाइटिंग इट इन अ वे कि हाँ, दिमाग को डाइवर्ट करो. फाइन, ये टाइम भी है, कब तक रहेगा. एंड बिफोर मूविंग अहेड आई शेयर अ शॉर्ट क्लिप ऑफ माइंड जो मेरे भतीजे ने, ही गेव मी अ सरप्राइज जस्ट 2 days बैक, वेयर इन द डे आई रीच्ड हेयर हॉस्पिटल से, वहाँ से उसने एक छोटी सी जर्नी 3-4 मिनट में बनाई है उसने. आई शेयर विद एवरीवन हाउ द सिचुएशन वाज. जब आपने मामा वाली अभी बात करी तो आई वेंट टू मास प्लेस एंड गेव हर अ सरप्राइज. शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मी कि मैं आ जाऊँगा ऐसे चल के. लेट मी शेयर दैट. बोलने से बेहतर है. जी जी, और सब लोग कनेक्ट करेंगे. We would love to watch that. जी, आपको यू हैव टू अलाउ मी टू शेयर द वीडियो. Yes. हॉस्पिटल वाली चीज़ें मैंने इसमें बिल्कुल हटा दी, बिकॉज वो कई लोगों का दिल घबरा भी सकता है. तो आई थॉट वो बाद में कभी शेयर करूँगा जब और जर्नी आएगी. बट हाँ, दिस इज द मोमेंट वेयर इन ऑल राइट. Yes, I think now you can. जस्ट अ सेकंड. There is a little glitch, but it's okay. सब लोग समझते हैं. मैं यार 1 साल के बाद आज ऑनलाइन कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ. आई एम सो थ्रिल्ड एंड मज़ा आ रहा है इन गलतियों में भी.
That's okay. It'll take a few moments. Visible, audible? Yes. These are my neighbors and of Oh, कैसे ये लोग साथ रहे हमारे. This was me when I touched the piano. I'm not an actor. I'm not a star. Music has always been there. ये छुटंकी मेरी रो रही थी. बॉडी बिल्डर को देख रहे हो आप? I just cried that day, touching piano after months. This was when I lost all my hair. Instead of crying, I started making fun of myself. How nice. That's my sister, you know. She was not expecting me that I'll be opening the gate, and I just opened the door for her. How wonderful. This is so lovely, and it's actually giving me goosebumps. They just can't even imagine being in your situation, going through all this. In person and the whole family. This was the guy. Again, I'll come back to Vatica again. He really helped me throughout, and I thought of giving them surprises. Random पहुंच गया था मैं. That's my mother. Oh. Getting ready after ages. Feeling more like back here, like yourself. Right. Oh God, Back in beautiful. It was really heart touching and heartbreaking to see you in the initial few moments of that. And I think it covered all the moments after you reached back home. that is what life is. But yes, you had a long time even before that, those 70, 80 days that you had in the hospital as well. So Gee. after that, going through all this in the last many months. So I know it's all has been quite stressful and tough. But if I, since you are a music lover and you like eat, breathe, live music,
Absolutely. as I've known you. What role did music play in all this over all through that you were going through? Big time. I'm here because of music. See, music is the most beautiful meditation. I believe, मेरे को बहुत connected रहा. And I'll share a practical reasoning to that. It is not कि हाँ I love music तो मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ. बहुत logical reason रहा इसका. There is another meditation technique we follow which is called a vipassana. तो विपसना से मैं थ्रू आउट बड़ा कनेक्टेड रहा, बहुत सारे शिविर के अटेंड करे. तो उसमें दे टीच यू हाउ टू बी कनेक्टेड विद योर ब्रेथ थ्रू आउट. इस बारी मेरी जर्नी के अंदर जब हम बाईपैप पे होते हैं तो द ब्रेथ, द स्पीड ऑफ ब्रेथ इज लाइक दिस फास्ट, यू आर थ्रू आउट उसको मेंटेन करना. तो बहुत सारे केसेस जो मैं अपने सामने देख पा रहा था उस टाइम पे, एक तो वो वेव ऐसी आई थी, वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल अराउंड. एंड उस रूम में भी मेरे सामने ऑलमोस्ट हर रोज बेड चेंज हो रहा था, अलग अलग लोग आ रहे थे एंड पीपल वर जस्ट गोइंग. अब उस चीज़ के अंदर मेरा दिमाग, एक मैं उसी सिचुएशन में हूँ, उसी बाईपैप पे हूँ एंड मेरे सामने लोग जाए जा रहे हैं. तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ मेरे को स्ट्राइक करी, दैट वाज टू गो विद इन. अपने अंदर जाओ, अगर मैं और कुछ नहीं कर सकता एटलीस्ट आई कैन कंट्रोल दिस. एंड इसी के ही सहारे आप जी सकते हो. साइकोलॉजिकली द मोमेंट इट हिट्स यू कि हाँ यार एक इस सिचुएशन में आ गए हो, यू आर स्टक, वहाँ कहानी खराब होती है. सो ड्यूरिंग दैट फेज आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन माई ब्रेथ एंड आई सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड दैट रिदम. कब सांस जा रहा है, कब बाहर आ रहा है, कब आ रहा है, जा रहा है. एंड उसमें बड़ा अच्छा, आई एम सेइंग दैट अगेन, बहुत अच्छा मेरा ध्यान लगता रहा थ्रू आउट, बिकॉज और कुछ था ही नहीं करने को, कुछ कर ही नहीं सकता था. तो आई वॉज देयर इन द ट्रांस. एंड देन केम अप द म्यूजिक. सिर्फ मेरे कानों में इंडियन क्लासिकल चलता रहा. पहले तो मैंने कुछ रागों के ऊपर सुनना शुरू करा, बिकॉज मेरी स्टडी भी अगेन इसी पे रही. बट देन अगेन आई क्रॉस दैट बॉर्डर वेयर इन साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे अंदर क्या चेंजेस ला रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रागों में बांधना, फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम एक जिम में जा रहे हैं तो जिम का म्यूजिक सुनते ही यू गेट दैट पेप अप काइंड ऑफ ए फीलिंग. अब यही आप जिम में जा रहे हो और शहनाई बजनी शुरू हो जाए, दैट कंट्रास्ट इज देयर थ्रू आउट. सो आप जैसा चीज़ सुन रहे हो, जैसे आप रिसीवर हो, इफ़ यू वांट टू गेट हील्ड इट विल 101% इफेक्ट. और मेरा थ्रू आउट यही चलता रहा. बहुत सारी खूबसूरत रियलाइजेशंस हुई, बहुत सारी चीज़ें रही एंड मैं सिर्फ सुनता रहा, अपनी चीज़ें बनाता रहा. एक चीज़ सुनता था तो मैं उसमें स्केलिंग ढूंढता था कि और सुर कहाँ पे ऐड करके क्या जा सकता है. एक गाना सुन रहा हूँ तो उसमें मेडले ऐड करने की कोशिश करता था, क्या करूँ, बिकॉज भयंकर कोविड का आफ्टर इफेक्ट इज दिस दैट बहुत मेजर मेमोरी लॉस होता है. एंड मैं तो वैसे ही पहली गजनी था और बुरी हालत में हो गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलने लग जाते हैं. तो दैट रियली हेल्प मी बीइंग इन दैट रिदम. म्यूज़िक तो बहुत खूबसूरत कनेक्शन है. इट शुड बी अ मस्ट इन वंस लाइफ. बहुत कुछ जीना सिखाता है. So that was music. Absolutely. We are getting such wonderful comments from all our audience. And itna अच्छे messages सबके आ रहे हैं. And I will request all ki please send in more of your blessings and wishes for Aman and everybody who could have been fighting with COVID, last year or even now with the Omicron wave. So सबकी तरफ से दुआएं आपके लिए आती रहेंगी एंड प्लीज देते रहिए दुआएं अपनी सबके लिए. अमन, आप जैसे जानते हैं कि आप म्यूजिक थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं और आपने उसमें डॉक्टरेट भी की है जी. सो हाउ डज दैट रियली वर्क एंड कुछ उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप शेयर करें. would love to. In fact आज तो बहुत
चीज़ें एडवांस हो गई हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ आई एम श्योर पीपल कैन जस्ट रिलेट दैट। गूगल पे भी आप देखेंगे कि एवरी साउंड्स क्रिएट अ पैटर्न। एक एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक आयरन का एक पीस था, उसके ऊपर किसी ने रब करा तो एक साउंड क्रिएट हुआ और उसमें पाउडर डाला हुआ था, तो दैट पाउडर स्टार्टेड क्रिएटिंग शेप्स, वो अलग अलग शेप्स में बन जाता था। Now that is all scientific, you know, every sound creates a different wave. अब आप इमेजिन करें that wave you when you are listening, that waves are equally effective on the water also, you know, liquid के ऊपर भी काम करता है। And we are blessed, 70% तो हम लोग पानी है। So वो जब आप एक bunch of notes when you are listening, for example हम रागा की बात करते हैं तो there are particular set of notes which you play, so that particular waves when they goes inside you, obviously वो कुछ तो हलचल मचेगी। that हलचल is been recorded in the scientific side of music. इसके भी दो पहलू हैं, एक साइंटिफिक है, एक और पर्सनल है। मैं पर्सनल वाले पे बाद में आता हूँ, बट यस साइंटिफिक आज की डेट में ज़रूरी है। सो दैट bunch of notes really affect our hormone called cortisol that is responsible for the stress levels in human being. अब आप इमेजिन करें being sitting on the piano, आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास तीनों फ्रीक्वेंसीज हैं, लो भी है, मिड भी है, हाई भी है, एंड उसी को ही अगर मैं प्ले करके चीज़ें कर रहा हूँ। नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद म्यूजिक फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम हेयर। आज मैं बैठ जाऊँ और सोचूं, सुनूं म्यूज़िक और सोचूं हाँ ये नोट आया होगा और इससे मेरा कॉर्टिसोल ऐसे इफेक्ट हुआ होगा, वो प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। लेट साइंस बी देयर। आंख बंद करो, बीट एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, हालांकि बीट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स और एनीथिंग यू आर डूइंग विच रिक्वायर्स योर फोकस, इट इमीडिएटली इफेक्ट्स दैट। लोग गेम खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं टू गेट rid of this so called stress levels, but हाँ म्यूज़िक, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी औकात नहीं है यार, मैं म्यूज़िक के बारे में मैं क्या बोलूँ, इट इज़ सच अ डिवाइन थिंगी दैट इफेक्ट्स इमीडिएटली। आप अगर दिल से चीज़ सुन रहे हो, किसी ने दिल से बजाया हुआ है, वो दिल तक जाएगी ही जाएगी। वी आर ह्यूमंस अबव एनीथिंग, एंड वी कनेक्ट, एवरीबडी कनेक्ट्स। सो द सिंपल जर्नी ऑफ म्यूज़िक इज़ बी रिसिप्टन के हाँ काम आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। मेरे सेशंस में आई हैव ऑब्जर्व्ड पीपल क्राइंग, बहुत बहुत रोना आता है म्यूज़िक सुन के, एंड आई टेल देम रो यार, इट इज़ नेचुरल। एक तो सो कॉल्ड सबसे बड़ी आयरनी ये है, मैं हर बारी ये चीज़ बोलता हूँ कि हम लोग ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहाँ पर एक आदमी का रोना इट इज़ लाइक अ सिन। ये कैसा आदमी रो रहा है यार तू यार, एंड मैं सबसे आगे आके बोलता हूँ सबसे बड़ा रोंदू मैं हूँ, आई क्राई अ लॉट एंड इट इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल। हम लोग पैदा हुए हैं, एक कितना अच्छा वेंट है, कितनी अच्छी, it is again a natural process. How can we stop You them? cannot suppress your emotion. Right, and we should not. Should not also. 80%, 80 क्या 99.9% प्रॉब्लम ही यहाँ आती है because we suppress that. Don't speak out. मेरे थेरेपी सेशंस के अंदर I speak the same thing ही, अपने विचार बाहर निकालो यार, अपने अंदर चीज़ें दबा के बैठे हो। I am not a psychiatrist to anybody, but yes, I can be a good friend wherein you can speak whatever you have in your mind. बैठो, म्यूजिक सुनो, एंजॉय करो, कॉन्फिडेंशियल है दैट इज फॉर श्योर। लिव इन अ मोमेंट, लिव एवरी मोमेंट। मैंने तो ये और भी अच्छे से सीख लिया इस जर्नी में। एनी डे एनीथिंग कैन हैपन भाई, लिव टू द फुलेस्ट एंड स्टे एज सिंपल एज यू कैन, दैट्स इट। ये छोड़ दो सोसाइटी के डंडे, ये खुद ही पीटते हैं हमारे को। सही कह रहे हैं अमन आप, while you also, you practice music all the time, but you also teach so many people, like, और कोविड जब से स्टार्ट हुआ है पिछले 2 साल से, जो लोग आपसे कनेक्टेड रहे हैं ओवर द टाइम, जिनको आप रोज सिखाते थे,
तो वो सब भी थोड़ा सा आपसे दूर हो गए, फिजिकली नहीं उतना मीट कर पा रहे थे आपसे, और लास्ट ईयर के बाद ऑफ कोर्स वो एक गैप जी। शायद बढ़ गया। सो आपने ये पिछले 2 साल में कैसे कोप किया, और आपने क्या ऑनलाइन किस तरह से डेवलप किया अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस, क्या शेयर करें? I'll say इस मामले में कोविड केम अप एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो स्टूडेंट्स मेरे पास दूर दूर से आते थे ऑलरेडी, अच्छे अच्छे डिस्टेंस से लोग आ रहे थे, ग्रेटर नोएडा से भी ट्रैवल कर रहे थे गुड़गांव तक के दिन, अलवर की साइड से, दिस बच्चा मोनू आई टोल्ड यू, ये दादरी के वहाँ से आता था, तो दूर दूर से लोग आ ही रहे थे। बट उनके लिए बड़ा अच्छा ये हो गया कि ट्रैवलिंग टाइम बच गया एंड ऑनलाइन चीज़ें चेंज होती गई। आई रिमेंबर गॉड्स बीन काइंड, हमारा ISU सर्टिफिकेशन आई अप्लाइड 2-3 years बैक, और वो जिस टाइम पे लॉकडाउन आई थिंक मार्च में हुआ था, 2020 मार्च जी 20th के जी आसपास, जी। April 1st week आई गॉट माई ISU सर्टिफिकेशन। सो दैट वाज अ गुड बूम। मेरे इंटरनेशनल क्लासेस शुरू हो गई, सब चीज़ें चल रही थी। देन इवन द लास्ट दिस थिंग, कोविड से पहले आई थिंक हम लोग 6 कंट्रीज़ में और बहुत सारी स्टेट्स में क्लासेस सब चीज़ें चल रही थी, एवरी डे वाज गोइंग वेरी वेरी गुड। तो वो इन अ वे अच्छा रहा, बिकॉज पहले मैं सोचता था कि जब तक एक फिजिकली मैं देख नहीं पा रहा या बच्चा मेरे हाथ को नहीं देख रहा तो वो कनेक्ट नहीं बनेगा। बट देन वो बहुत उल्टा हुआ, बिकॉज आप घर पे हो, आप सेफ बैठे हुए हो अंदर। दिस इज अगेन द क्लासरूम जिस पे मेरी बात हो रही है। अब एक एंगल मेरा ये है, एंड आई जस्ट, चलो ये भी अच्छा है, आई शो यू अराउंड माई क्लासरूम। श्योर, वी लव टू। दिस इज हाउ आई कंडक्ट माई one-on-one lessons, एंड ओके। जब मेरे को सिखाना होता है बच्चों को, तो दिस इज हाउ आई शो देम दीज आर द कीज एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मूव ऑन। देन दी साइड्स, हाथों की पोजिशनिंग होनी सबसे ज़रूरी है, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट एंगल वेयर एंड हाउ टू प्लेस योर हैंड एंड स्टफ। सो एवरीथिंग इज गुड। अगला एंगल इज वेयर जहाँ पर यू गाइड, आई गाइड माई बच्चाज वेयर एंड हाउ टू सिट ऑन द पियानो, बिकॉज एक ग्रेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस इंस्ट्रूमेंट का। सो मेनी एस्पेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। एंड अब इस जर्नी के बाद ये जो हुआ मेरे साथ, इसने मेरे को एक बहुत खूबसूरत रियलाइजेशन यही दी कि इट इज़ माई ड्यूटी, जो 0.00001% मैंने सीखा है अभी तक, इसको शेयर करना चाहिए। अगेन जो मेरा रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, या जो भी मेरी कॉम्पोजिशंस रही, आई हैव नॉट लर्नड दैट साइड ऑफ म्यूज़िक। आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई टीचर मिस्टर नावल, मिस्टर खुराना, जिन्होंने मेरे हाथ चलाने सिखाए, वेस्टर्न क्लासिकल क्या है, चीज़ें कैसी हैं। बट देन अपने आप आता है। म्यूज़िक इज़ अ गिफ्ट, इट कम्स। मैं 4 साल की उम्र से कुछ ना कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें करेक्ट। सो कुछ ना कुछ प्ले कर ही रहा हूँ, सब चीज़ें चल रही है। बट देन टेक्निकल जानना बहुत ज़रूरी है, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वेरन चाहे जितने ट्यूटोरियल्स देख लें हम, मैंने भी डाले, चीज़ें करी, बट नहीं, एक one-on-one कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ सिखाने में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और सीखने वाले को भी डेफिनेटली एडवांटेज है। सो दैट इज़ हाउ ड्यूरिंग दिस फेज आई रियलाइज्ड कि आई मस्ट पास ऑन जो ये मेरा म्यूज़िक थेरेपी है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। आपने अगर प्ले करना है पियानो तो क्या बेसिक्स हैं वो जान जाओ यार। खुद कंपोज करना सीख जाए इंसान तो प्लेइंग एनी ऑफ द बॉलीवुड नंबर्स, इट इज़ ईजी इन अ वे। आप सुनो और प्ले करो, उसको जानो कि क्या कॉर्ड लग रही है, क्यों लग रही है। रटो मत, म्यूज़िक को रटना नहीं चाहिए, इट इज़ अ क्राइम। म्यूज़िक शुड बी फेल्ट एंड देन एक्सप्रेस्ड ऑन फिंगर्स, तब है मज़ा। तो अभी आके अगेन वी हैड अ good chat with some organizations, and then finally abhi last week, I think 22nd of Jan, we got certified from government of India also. अब हमारा कोर्स जो है वो एक गवर्नमेंट का एक कोर्स हो गया, वेर इन यू विल बी कंसिडर्ड इन दी जॉब्स ऑल्सो, गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। एंड अपने एंड से भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं टू ओपन अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द टीचर्स, फॉर ऑल द कंपोजर्स एंड स्टफ। बहुत आजकल अच्छा है कि सब लोग इलेक्ट्रो म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं,
सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं. तो वंस यू नो द साइंस बिहाइंड म्यूजिक कॉम्पोजिशन, बीट एनी इंस्ट्रूमेंट, इट इज वर्थ इट. एंड इसकी प्राइसिंग भी ऐसे रखिए कि यार आई हैव टू पास इट, चलते जाओ. पैसा सेकेंडरी है, रस ले लो जो है म्यूजिक का, मजा आएगा. Wonderful, and congratulations for getting the course recognized from Thank you. Government of India. So I'm sure आप उसको पूरी तरह से आगे शेयर करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आप लोग आपसे जुड़ते जाएंगे उनके साथ भी. नहीं, it is a duty. It is a एंड आर यू नाउ बैक टू टेकिंग क्लासेस? आप अभी वापस अपने सब जो पुराने स्टूडेंट्स थे आपके, या जो आपके साथ एसोसिएट सब थे, अब वापस आप क्लासेस ले रहे हैं और जी जी सिखा रहे बिल्कुल. हैं और उनसे अपने प्रैक्टिस राउंड्स कर रहे हैं? Absolutely. Fortunately, last December mid में मैं I was off wheelchair, and January mid से I am off my oxygen support also. Hardly ही लेना पड़ता है. God bless. And हमने एक और इनिशिएशन किया है, where introduced a crash course. 4 महीने के अंदर we are giving all the theoretical and practical knowledge to the बच्चास, which is starting just day after tomorrow. फर्स्ट फेब से शुरू हो रही है. तो एवरी मंथ 1-2 बैचेस हमारे चलते रहेंगे ये. एंड यस, थिंग्स आर बैक इन एक्शन. इनफैक्ट ये मेरी रिकवरी इसमें बड़ी अच्छी हो रही है. सारे बच्चों से, सारे मेरे बच्चे ही निकलता है मुझ से. इसमें बहुत सारे मेरे से बहुत बड़े हैं एज में, बट गेटिंग कनेक्टेड विद ऑल ऑफ देम, एंड इतना प्यार, इतनी दुआएं, इतने ब्लेसिंग्स हर जगह मिलती हैं, फिर मज़ा आता है. enjoying every bit. जैसे आप कह रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, तो क्या आप किस एज ग्रुप से शुरू करते हैं और कहाँ तक के आपके मेरा स्टूडेंट्स की रेंज करती है करंट, और व्हाट विल अगेन बी? I'll say ये तो वो उसका है, एज है ही नहीं म्यूजिक के अंदर कुछ बाउंड्री. द यंगेस्ट हु क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो 4.5 साल की थी व्हेन शी स्टार्टेड लर्निंग, एंड 6 साल 7 साल में उसने अपना क्रिएट करा रिकॉर्ड. एंड जो एल्डेस्ट हैं, ही इज 72 और 78, आई डोंट नो, 70s में हैं जो सीख रहे हैं. एंड सो बहुत अच्छा स्पैन है बीच में. मेरे को सिर्फ मज़ा और कनेक्शन वहाँ बनता है जहाँ पैशन हो सीखने का. जब वो क्यों पूछते हैं ना, सर ये कॉर्ड ही क्यों लग रही है, या ये कॉर्ड कब लगनी चाहिए, या यही नोट क्यों आ रहा है, वो क्यों में बड़ा मज़ा आता है. जो ऐसे क्यों वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं फॉर दैट मैटर, फिर वो एज तो मैटर ही नहीं करती. कई इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी चीज़ें खूबसूरत पूछते हैं, सिखा जाते हैं, और वो काम आता है. तो और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स या बच्चे जो हैं, उन्होंने भी अपने लेवल पे, आपने उनको गाइड किया और आपकी गाइडेंस के अंडर, आपकी कोचिंग के अंडर, उन्होंने भी अपने लेवल पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आई थिंक. तो मैं आई एम रियली ब्लेस्ड. they are kind of जी going in your path. They are नहीं going नहीं, forward to इट इज achieve. सच अ प्लेजर सीइंग देम. 5 बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. एंड एक को तो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने भी करा एक्नॉलेज. एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग, कि हाँ, आपको लगता है कि जो बीज बोए, जहाँ मेहनत हुई, जहाँ विजन दिखाया गया, वो काम आया. एंड आगे तक बच्चों की लाइफ बनती रहे. व्हाट एल्स, एक बीइंग अ मेंटर, और कुछ चाहिए नहीं. दैट इज इट. इट इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग. यू फील कंटेंटेड. As guru, you are always there for them. ऑलवेज. So wonderful. And आप अभी बात कर रहे थे आपके, जब सब लोग पूछते हैं क्यों ये नोट या क्यों ये राग, जी. so and आप you are an expert in your field, and you're on the ragas and the notes on your piano, and we have missed hearing from you for such a long time. So we would love to hear something पक्का from पक्का. you which is one of your favorites or comes right on top of your mind. कुछ अच्छा सा आप पक्का सुना पक्का दीजिए, मजा आ जाए. would love to play. इनफैक्ट आज तो और भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स बीन व्हाट ऑलमोस्ट एन ईयर मैंने लाइव प्ले नहीं किया. एंड We are पहली fortunate to have you here on this platform doing this, it is my breaking your pleasure. fast of being online and Thank you. live thing. And
पहले ही सबको सॉरी बोलूँगा अगर कोई गलती करता हूँ तो। आई डोंट नो, फ्लो में बहेगा हाथ जहाँ चलेगा, तो गलती हो तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। बट हाँ, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिएगा, बिना उसके गाड़ी नहीं चलती। एंड अगेन कमिंग ऑन टू द सोसाइटी आई एम लिविंग इन, वाटिका सिटी। मैं आपको बोल रहा था, मैं ज़रूर बाद में मेंशन करूँगा। जी जी जी। I was blessed to be surrounded by angels. स्मृति जी, ट्रस्ट मी, थ्रू आउट द जर्नी हॉस्पिटल तक। एंड यहाँ पर भी जब डायग्नोज हुआ था तो टू माई सरप्राइज, यू नो, कहीं से कोई खाना भेज रहा है लेटर्स के साथ एंड नोट्स के साथ, वी वांट यू बैक। और मैं बोल रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग इमोशनल देयर, यू नो। Sure. कंट्रोल कंट्रोल, अभी नहीं। That's सो okay. इतना इतना प्यार मिला। मेरे बिल्कुल घर के जो सामने हमारे रहते हैं, मिस्टर स्वामी एंड एवरीबडी, दे वर देयर थ्रू आउट, यू नो। तो वो गाना था ना, जाने नहीं देंगे तुझे, ऐसा वाला फैक्टर चलता रहा। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी वेल विशर्स, इंडिया से, बाहर से, स्ट्रेंजर्स, इतना मेरे को प्यार दिया, इतना 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 ब्लेसिंग्स दी। सो दैट इज व्हाट हेल्प दिस फाइटर बी देयर, कि नहीं अभी नहीं, जो इतना प्यार आ रहा है अभी तो और बटोरना है। आपके घर वालों के साथ पूरे ये हमारे जानने वालों को भी सबने आपके लिए प्रे किया ओवर द बिल्कुल टाइम. And I think, best wishes and blessings to everyone who kept on, you know, waiting and praying for you to be well and back home. And also bless all the doctors and, all the ओ, medical fraternity who worked with you and like made it happen. बिग Of टाइम, यू course, नो, prayers were always, I think, biggest. ऑल देयर, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सेज एंड एवरीबडी, वहाँ पर भी डॉक्टर रितु, एंड यहाँ पर भी डॉक्टर कटारिया। मैं किसी का नाम लेना शुरू करूँगा ना तो मैं 100% फंस जाऊँगा, क्योंकि इतने सारे नाम हैं और मैंने जिसका नहीं लिया तो आई फील गिल्टी लेटर ऑन। तो अगेन मैं तो सबको थैंक यू बोल रहा हूँ, बी इट दी नर्सिंग स्टाफ देयर, एक एक व्यक्ति ने बिल्कुल इतने प्यार से मेरे को साथ दिया, सहारा दिया। तो 2-3 बार तो ऐसा हो गया था जब डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था, तब भी यू नो माय वाइफ शी वाज देयर थ्रू आउट, तो वो भी मेरे को याद आता है कि नहीं, ही विल कम बैक एंड आई एम ऑल हियर। चलो म्यूजिक करते हैं, चलो म्यूजिक करते हैं। Hello to all the people. Let's give a big hands up and clapping to Aman, and like, that, yeah, let's just hoot for him Sing my online, right? Even concert. if you're listening, we can hum along and keep on sharing all of likes and love for him. थैंक यू, थैंक यू। Please, please अलाउ मी, take मैं on. आपको दूसरे व्यू में ले चलता हूँ एंड माइक करता हूँ बंद। मैं कौन सा गाना प्ले करूँ, बट आई डोंट नो, जो भी आएगा देखते हैं। कुछ भी अच्छा सा, लग जा गले आपका बहुत अच्छा एक हाँ, फेवरेट है. थैंक यू, I've आई heard लव it so many times. दैट। Let's hear that.
Awesome. Fantastic. Wonderful. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure everybody back there who's listening to us are also clapping in the same way at their end and giving you all the cheers. This is so beautiful and so soothing and such a beautiful rendition of the song. Thank you so much. It is such a pleasure, एक ऐसा लग रहा है पहली बार ही मैंने कहीं किसी के सामने प्ले करा. इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग एंड आई मिस्ड इट थ्रू आउट वेटिंग. कोविड ख़त्म हो, विल हैव अ कॉन्सर्ट टुगेदर, तब और मज़ा आएगा. Yes, absolutely. This is just a beginning, and I'm thinking a long, more achievements to come your way and more, ways to go. Mean that. Thank you. Thank you. Wonderful having you, Aman, here, and it was, you know, beautiful listening to you. I know it's a tough journey, but yes, all your feelings, your emotions that came out and sharing that, you are back with us. For all who have been wondering for your health, I am sure everybody would be so relieved seeing you there, sitting before us. And as I am also so relieved that we could connect, and we haven't met in person. I would, but yes, ये भी एक शुरुआत है और आगे I बहुत know. जल्द हम I know. पर्सनली मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे. आपकी जो हेल्प हम कर सकें एज ए कम्युनिटी, एज गुड़गांव कम्युनिटी सर्कल, आई एम श्योर वी ऑल विल बी Oh, nice. always ready to help you and Thank you. support you in whatever way possible. Thank Thank you. you And so then much. likewise, I'm also always there. Count me in without asking anything, anything I can be of any help. It'll be a pleasure. Mhm. Thank you. Thank you. Wonderful having you. And thank you everyone for joining in such beautiful messages and love for Aman. And you must go and, Aman, you have to catch up on the messages and see so much of love coming your way and all these blessings. So great. Thank you so much to all the audience who joined us today. And thank you for again connecting on GCC. We hope to see you again very soon with somebody again very motivational or inspirational around us who are the great pillars in our society. And goodbye and good night for now. Have a great weekend. Thank you.